ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ شہر میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ وہ سارا دن میں پھیری پر چیزیں بیچتا اور شام کو تھکا ماندہ گھر واپس پہنچتا۔ باوجود اس کے کہ وہ دن بھر سخت محنت کرتا، اس کی زندگی میں کوئی نمایاں بہتری نہیں آ رہی تھی۔ کبھی گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو کبھی پہننے کے لیے مناسب کپڑے تک میسر نہ ہوتے، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ شکر گزاری تھی۔ وہ جو بھی کماتا اس پر قناعت کرتا اور کبھی کسی کو دھوکہ دینے یا ناجائز طریقے سے دولت حاصل کرنے کا خیال تک دل میں نہ لاتا۔ ایک دن پھیری والے کی بیوی ایک سنگھار گھر میں سنگھار کرنے کے لیے گئی۔ سنگھار گھر کو آج کل بیوٹی پارلر کہتے ہیں۔ اس زمانے میں گھروں میں میک اپ کرنے کا رواج نہیں تھا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں زنانہ سنگھار گھر بنے ہوئے تھے، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ سنگھار کرنے یعنی میک اپ کرنے کے لیے آتے۔ ان سنگھار گھروں میں نہانے کا بھی بہترین انتظام موجود تھا۔ گرم اور ٹھنڈے پانی کی سہولت ہر وقت دستیاب رہتی تھی۔ نہلانے کے لیے خادمائیں اور کنیزیں موجود ہوتی اور سنگھار کرنے کے لیے بھی خادمائیں اور کنیزیں موجود ہوتی۔ ابھی غریب پھیری والے کی بیوی نے سنگھار کروانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ اچانک سنگھار گھر کے دروازے پر ایک شاندار گھوڑا گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک رئیس خاتون اتری، جس کے لباس کی شان و شوکت حیرت انگیز تھی۔ اس کے ہاتھوں اور گردن میں سونے کے بیش قیمت زیورات چمک رہے تھے اور اس کی انگلیوں میں ہیرے کی انگوٹھیاں جگمگا رہی تھیں۔ حمام کے ملازمین فوراً آگے بڑھے، اس عورت کا پرتپاک استقبال کیا اور جھک کر سلام کیا۔ یہ خاتون بے حد مغرور معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے کسی کے سلام کا جواب تک دینا مناسب نہ سمجھا، بلکہ بلند آواز میں کہا، اس وقت سنگھار گھر میں کون ہے؟ فوراً نکالو سب کو۔ جب ہم سنگھار کروا لیں تب عورتوں کو آنے کی اجازت دینا۔ سنگھار گھر کی خادماؤں نے حکم کی تعمیل میں فوراً ان تمام عورتوں کو باہر نکال دیا جو اس وقت سنگھار کروا رہی تھی یا غسل کر رہی تھی یا اپنی باری کے انتظار میں تھی۔ انہی عورتوں میں وہ غریب پھیری والے کی بیوی بھی تھی۔ اس نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، یہ حمام امیر اور غریب سب کے لیے ہے۔ آخر ہم مفت میں سنگھار کروانے نہیں آئے، ہم اپنی اجرت ادا کر رہے ہیں۔ مگر خادماؤں نے اس کی ایک نہ سنی۔ پھیری والے کی بیوی کو حیرت بھی تھی۔ اس نے پوچھا، یہ عورت جو ابھی گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر آئی ہے کون ہے؟ دوسری عورت نے تعجب سے کہا، تمہیں نہیں معلوم؟ یہ شاہی نجومی کی بیوی ہے۔ اس کے شوہر کا دربار میں بڑا اثر و رسوخ ہے۔ یہ سن کر پھیری والے کی بیوی اپنی غربت پر افسوس کرتی ہوئی آنکھوں میں آنسو لیے گھر واپس آ گئی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف لیٹ گئی، نہ خود کچھ کھایا نہ بچوں کو کھانے کو دیا۔ شام کو پھیری والا گھر آیا تو دیکھا کہ بیوی کا چہرہ اترا ہوا ہے اور بچے بھوک سے بے حال ہو رہے ہیں۔ پھیری والے نے کہا، ارے کیا ہوا؟ یہ کیا تماشا ہے؟ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کیا آج کھانے کا انتظام نہیں ہوا؟ بیوی نے غصے سے جواب دیا، جس دن سے تمہارے ساتھ آئی ہوں ایک لمحہ سکون نصیب نہیں ہوا۔ میری قسمت ہی خراب تھی کہ تم جیسے غریب کے گھر آ گئی۔ عزت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور ادھر دیکھو، شاہی نجومی کی بیوی کے ٹھاٹ باٹ۔ اللہ کی شان ہے، وہ آئی اور سنگھار گھر میں موجود تمام عورتوں کو باہر نکلوا دیا۔ بیوی نے مزید کہا، آخر تم بھی شاہی نجومی کیوں نہیں بن جاتے تاکہ میری بھی وہی عزت ہو اور میں جب چاہوں دوسری عورتوں کو سنگھار گھر سے نکلوا سکوں۔ یہ سن کر پھیری والے کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے بیوی سے پورا قصہ سننے کے بعد کہا، بے وقوف، نجومی بننا کوئی آسان کام نہیں، اور وہ بھی شاہی نجومی۔ اس کے لیے برسوں کی محنت، علم اور استادوں کی شاگردی ضروری ہوتی ہے۔ مگر بیوی بضد تھی، مجھے کچھ نہیں معلوم، تمہیں جلدی سے شاہی نجومی بننا ہوگا ورنہ میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ پھیری والے نے سوچا کہ چند دن میں یہ ضد ختم ہو جائے گی، مگر یہ ضد تو جیسے اس کے سر پر سوار ہو گئی۔ وہ بارہا بیوی کو بتاتا رہا کہ نجومی بننے کے لیے کتابیں، نقشے اور علم نجوم کے اصول سیکھنے پڑتے ہیں، پھر مہینوں بلکہ برسوں استادوں کی شاگردی کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کہیں علم نجوم میں کچھ سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے۔ مگر پھیری والے کی بیوی کو ان سب باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، چاہے اب کتابیں پڑھو یا نہ پڑھو، استاد کی شاگردی کرو یا نہ کرو،
बस जल्दी से नजूमी बनकर दिखाओ, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। उठते बैठते बस उसकी यही रट थी, शाही नजूमी बन जाओ, वरना मैं अपने घर खुश, तुम अपने घर खुश। आखिर तंग आकर फेरी वाले ने एक पुराना सा बोरिया उठाया, चंद नक्शे संभाले जिन पर तारों की उल्टी सीधी तस्वीरें बनी थीं, और कबाड़ से इल्म नजूम की 2 किताबें खरीद लीं। फिर उसने एक कलम और एक दवात और चंद लोहे के पासे खरीदे। ये सब चीजें बोरे में डालकर बाजार में जा बैठा। सामने एक तख्ती पर यह इबारत लिखवा दी, खानदानी नजूमी, आपकी किस्मत का तमाम हाल फौरन बताने वाला, आजमाइश करके देखें। इत्तेफाक की बात है, उसने अपना ठिकाना ऐसी जगह बनाया जहां वो जनाना सिंगार घर मौजूद था, जहां से उसकी बीवी को बेइज्जत करके निकाला गया था। उसी रोज बादशाह की बड़ी बेटी सिंगार करवाने के लिए सिंगार खाने में आई। सिंगार के दौरान उसने अपनी हीरे की अंगूठी उतारकर एक खादमा को दी ताकि वो उसे महफूज रखे। खादमा ने सिंगार खाने की दीवार के एक नन्हे से सुराख में अंगूठी रख दी और निशानी के तौर पर अपने सर के बालों का एक गुच्छा भी उस सुराख में फंसा दिया। फिर वो शहजादी के सिंगार में मसरूफ हो गई। उस जमाने में अमीरजादियां और शहजादियां सुबह शाम तक सिंगार खाने में रहती थीं। ये शहजादी भी कई घंटे वहां पर रही, और जब जी भर गया तो उसने अपनी कनीजों को हुक्म दिया कि इसके कपड़े और जेवरात हाजिर किए जाएं। तमाम कनीजों ने शहजादी का शाही लिबास और जेवरात फौरन पेश कर दिए। आखिर में शहजादी को अपनी हीरे की अंगूठी की याद आई। उसने वही कनीज बुलाई जिसे अंगूठी दी थी और कहा, हमारी अंगूठी कहाँ है? अभी तक क्यों पेश नहीं की गई? फौरन अंगूठी लाई जाए। मगर कुदरत का करिश्मा देखें, वो कनीज भूल चुकी थी कि उसने अंगूठी कहाँ रखी थी। वो बदहवासी में इधर उधर तलाश करने लगी। पूरा सिंगार खाना छान मारा, हर चीज की बारीक बीनी से तलाशी ली, मगर अंगूठी ना मिलनी थी ना मिली। अब तो शहजादी का गुस्सा हद से बढ़ चुका था। शहजादी ने कहा, अगर सूरज गुरूब होने से पहले हमारी अंगूठी पेश ना की गई तो तुम्हें कैद खाने में डाल दिया जाएगा। ये हुक्म सुनकर बेचारी कनीज के होश उड़ गए। वो रोती हुई हमाम से बाहर गई। अचानक उसकी नजर सामने बैठे एक खानदानी नजूमी पर पड़ी। मुसीबत ज़दा इंसान दीवाना हो जाता है। कनीज को कुछ और ना सूझा। वो सीधी नजूमी के पास गई और रोते हुए कहने लगी, ए नजूमी, खुदा के वास्ते मेरी मदद करो। जल्दी से हिसाब किताब लगाकर बताओ कि मैंने शहजादी की अंगूठी हमाम में किस जगह रखी थी। अगर सूरज गुरूब होने से पहले अंगूठी ना मिली तो मुझे कैद खाने में डाल दिया जाएगा। नजूमी बेचारा हकीकत में कुछ जानता ना था, मगर वो जाहिर करने लगा जैसे वो वाकई किस्मत का हाल बता सकता है। उसने झूठ मूठ कलम और दवात उठाई, कागजात पर बेतरतीब लकीरें खींची और अजीबोगरीब निशानात बनाए। फिर आसमान की तरफ नजरें उठाई जैसे वो सितारों से मशवरा कर रहा हो। कुछ देर बाद वो बड़बड़ाते हुए बोला, अगर आसमान में कोई सुराख होता तो मेरे बच्चे भूखे ना मरते। अगर आसमान में कोई सुराख होता तो मेरे बाल। ये अल्फाज सुनते ही कनीज के जहन में एकदम धमाका हुआ। बाल, सुराख। अचानक उसे याद आ गया, उसने शहजादी की अंगूठी कहाँ रखी थी। वो बेतहाशा दौड़ती हुई हम्माम में गई, दीवार के सुराख में से अपने बालों का गुच्छा हटाया और फिर वहां से हीरे की अंगूठी निकाल ली। फिर वो तेजी से शहजादी की खिदमत में हाजिर हुई और अंगूठी पेश कर दी। शहजादी ने पूछा, ये अंगूठी कहाँ से मिली? कनीज ने शहजादी को बताया, हम्माम के बाहर एक अजीम नजूमी बैठा है। उसने इल्मे नजूम के जरिए बताया कि मैंने अंगूठी कहाँ रखी थी। ये सुनकर शहजादी हैरान रह गई। वो फौरन महल गई और बादशाह से उस नजूमी का जिक्र किया। बादशाह हमेशा माहिर नजूमियों की तलाश में रहता था। उसने फौरन हुक्म दिया, उस नजूमी को फौरन हमारे दरबार में हाजिर किया जाए। हुक्म की देर थी कि नजूमी को हाजिर कर दिया गया। बादशाह ने नजूमी को सामने देखकर कहा, सुना है तुम बहुत माहिर नजूमी हो। नजूमी ने अजबात में सर हिला दिया। फिर बादशाह कहने लगे, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। हमारी रियाया को डाकुओं ने परेशान किया है, मगर हमारी पूरी फौज मिलकर भी उन डाकुओं का सुराग नहीं लगा सक रही। मैं चाहता हूं तुम उन डाकुओं का सुराग लगाओ। अगर तुम इस काम में कामयाब हो गए तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे, लेकिन अगर नाकाम रहे तो तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा। अब बताओ तुम्हें कितनी मुद्दत दरकार है?
नजूमी खौफजदा आवाज में बोला, हुजूर मुझे 40 दिन की मोहलत अता की जाए। खुदा की जात से उम्मीद है कि मैं इस मुद्दत में डाकुओं का सुराग लगा लूंगा। बादशाह ने सर हिलाते हुए कहा, तुम्हें 40 दिन की मोहलत दी जाती है, अब जा सकते हो। नजूमी लरजते कदमों के साथ महल से निकला और सीधा अपने घर पहुंचा। उस वक्त वो अपनी बेवकूफ बीवी पर सख्त गुस्से में था, जिसने उससे अच्छी खासी फेरी की नौकरी छुड़वाकर शाही नजूमी बनने पर मजबूर कर दिया था। अगर उसका बस चलता तो वो बीवी को कच्चा ही चबा जाता, मगर अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। अब सवाल ये था कि वो उन कमबख्त डाकुओं को कहाँ तलाश करे। नजूमी ने खुद से कहा, मैं तो गया, अगर मेरा बाप भी जिंदा होता तो वो भी उन्हें ढूंढ ना सकता। क्या खबर थी कि मेरी मौत इस तरह लिखी है। जिंदगी से सख्त मायूस होकर नजूमी ने मिट्टी का एक मर्तबान लिया और उसमें खजूर की 40 गुठलियां डाल दी। फिर उसने बीवी से कहा, ऐ नेक बख्त, अब हर शाम इस मर्तबान में से एक गुठली निकाल कर मुझे देती रहना। जब 40 दिन पूरे हो जाएं, तो हम सब इस मनहूस शहर से कहीं और भागने की कोशिश करेंगे ताकि जान बच सके। ये सुनकर बीवी घबरा गई और पूछने लगी, ये सब क्या मामला है। तब नजूमी ने पूरा किस्सा सुना दिया। किस्सा सुनकर बीवी के पांव तले से जमीन निकल गई, मगर वो कर भी क्या सकती थी। रोने धोने के सिवा कोई चारा ना था। मगर किस्मत का खेल देखें, जब डाकू ने शाही खजाने पर हाथ साफ किया था, उनकी तादाद भी 40 थी और उन्हें मालूम हो चुका था कि बादशाह ने अपने एक नजूमी को हुक्म दिया है कि 40 दिन के अंदर अंदर डाकुओं का पता लगाया जाए। ये खबर सुनकर डाकू सख्त परेशान हो गए कि अगर ये नजूमी वाकई ही काबिल है तो कहीं वो अपने इल्म से वाकई उनका सुराग ना लगा ले। डाकुओं का गिरोह परेशान था। वो सोच रहे थे कि इल्म की मदद से उनका सुराग लगाकर बादशाह को इत्तला दे दी गई तो उनकी खैर नहीं। इसी खौफ के बायस पहली ही रात 40 डाकुओं में से एक चुपके से नजूमी के मकान की छत पर चढ़ गया ताकि मालूम कर सके कि नजूमी क्या कर रहा है। अभी डाकू को छत पर चढ़े हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक नजूमी की बीवी की आवाज उसके कानों में आई। बीवी ने कहा, ये लो 40 में से एक। ये जुमला उस वक्त कहा गया जब बीवी 40 खजूरों की गुठलियों में से पहली गुठली अपने शौहर को दे रही थी, मगर डाकू के होश उड़ गए। वो फौरन छत से नीचे उतरा और अपने सरदार के पास जाकर हाँफते हुए बोला, हम बर्बाद हो गए। जब मैं नजूमी के मकान की छत पर छुपा हुआ था तो उसकी बीवी ने अपने शौहर से कहा, ये लो 40 में से एक। नजूमी तो नजूमी, उसकी बीवी भी ये इल्म जानती है, वरना उसे मेरे बारे में कैसे मालूम होता। ये सुनकर डाकुओं का सरदार मजीद फिक्रमंद हो गया। अगले दिन शाम के वक्त सरदार ने अपने 2 आदमियों को नजूमी के मकान पर भेजा और उन्हें हिदायत दी कि जो कुछ नजूमी और उसकी बीवी आपस में बात करें वो आकर ठीक ठीक बताएं। दोनों डाकू मकान की छत पर चढ़े और एक कोने में दुबक कर बैठ गए। कुछ देर बाद बीवी की आवाज उनके कानों में आई। बीवी ने कहा, ये लो 40 में से 2। ये सुनते ही दोनों डाकू सर पर पैर रखकर भागे और सरदार को जाकर बताया, नजूमी की बीवी को हमारे बारे में मालूम हो गया था। उसने फौरन अपने शौहर को बता दिया। ये रोजाना का मामूल बन गया। आखिर वो 40वीं शाम आ गई। उस दिन डाकुओं के सरदार ने फैसला किया कि वो खुद नजूमी की मकान पर जाएगा और अपने कानों से मियाँ बीवी की बातें सुनेगा। वो नजूमी के मकान की छत पर चढ़ गया और दुबक कर बैठ गया। उस दिन मर्तबान में आखिरी गुठली बाकी थी और इत्तेफाक से वो सब गुठलियों से बड़ी और मोटी थी। कुछ देर बाद सरदार ने सुना कि नजूमी की बीवी कह रही है, ये लो अब आखिरी है और इसके बाद काम खत्म। डाकुओं के सरदार ने घबराहट में छत से मकान के अंदर छलांग लगा दी और सीधा नजूमी के कदमों में जा गिरा। नजूमी और उसकी बीवी खौफजदा हो गए। ये शख्स अचानक कहां से आ गए। नजूमी अभी कुछ कहने भी ना पाया था कि डाकुओं का सरदार गिड़गिड़ाते हुए बोला, जनाब, मैंने अपने साथियों के साथ शाही खजाना लूटा था, मगर आपने इल्मे नजूम के जरिए हमारा सुराग लगा लिया। मैं सारा खजाना वापस करने को तैयार हूँ, मगर बराए करम बादशाह सलामत को हमारा पता ना बताएं। हमने वो खजाना जंगल में सबसे बड़े दरख्त के नीचे दफन कर रखा है। बादशाह को इत्तला दे दीजिए और खुदा के वास्ते हमारी जान बख्शी कर दीजिए। यूं शाही खजाना बरामद हो गया।
बादशाह बेहद खुश हुआ और नजूमी को बहुत सा इनाम दिया। फिर उसने हुक्म दिया कि आइंदा दरबार में नजूमी के लिए भी एक मखसूस कुर्सी रखी जाए, मगर नजूमी इस इज्जत अफजाई पर खुश ना था। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी न कभी तो छुरी तले आएगी। एक दिन बादशाह अपने लश्कर के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। नजूमी भी साथ था। चूंकि नजूमी का कद छोटा था, बादशाह ने उसे टिड्डे मियाँ का लक़ब दे रखा था। शिकार खेलते खेलते बादशाह को शरारत सूझी। उसने चुपके से एक टिड्डा पकड़कर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और नजूमी को बुलाकर कहा, बताओ हमारी मुट्ठी में क्या है? अगर ना बता सके तो तुम्हें कोड़े पेश किए जाएंगे। ये सुनते ही नजूमी लरस गया। उसने एक नजर बादशाह पर डाली, फिर अपनी जिंदगी से मायूस होकर बोला, लो टिड्डे मियाँ, अब तुम्हारी जान बादशाह की मुट्ठी में है। इस बार बचकर कहाँ जाओगे? ये सुनते ही बादशाह जोर से हंसा और अपनी मुट्ठी खोल दी। टिड्डा फौरन उड़ गया। नजूमी उस अजीब इत्तेफाक पर हैरान रह गया और वो दिल ही दिल में खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करने लगा कि उसकी जान बच गई। घर वापस पहुंचकर नजूमी ने सोचा, आखिर कब तक मैं अपनी जान बचाता रहूंगा? कोई दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं बादशाह के सवालों का जवाब न दे सकूंगा और फिर मुझे सख्त सजा मिलेगी। लिहाजा बेहतर यही है कि मैं इस पेशे से तौबा कर लूं। मगर बादशाह की नौकरी छोड़ना कोई आसान काम ना था कि बस जाकर इस्तीफा दे देना और कहना, हुजूर मैं अब नौकरी नहीं करना चाहता। ऐसी गुस्ताखी बादशाह कभी बर्दाश्त न करता। अब सवाल ये था कि नजूमी अपनी जान कैसे बचाए। एक दिन जब नजूमी नहा रहा था तो उसके दिमाग में एक निराली तरकीब आई, क्यों ना मैं पागल बन जाऊं, इस तरह बादशाह खुद ही मुझे दरबार से निकाल देगा। ये ख्याल ऐसा था कि नजूमी खुशी के मारे वाकई पागल हो गया। वो गुसल खाने से बगैर कपड़ों के ही बाहर निकल आया और बाजारों और गलियों में दौड़ता हुआ सीधा शाही महल में जा घुसा। बादशाह अपने कमरे में आराम कर रहा था। पहरेदारों ने नजूमी को रोकने की कोशिश की, मगर वो धड़ाक से बादशाह के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जा पहुंचा। फिर हैरत अंगेज तौर पर वो सोए हुए बादशाह को गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल आया। अभी बादशाह नजूमी की इस गुस्ताखी पर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक कमरे की छत धड़ाम से गिर गई। अगर बादशाह को वहां से निकलने में जरा सी देर हो जाती तो छत सीधा उस पर आ गिरती। बादशाह ने यह मंजर देखा तो हैरत में डूब गया। उसने नजूमी को गले लगा लिया और खुशी से बोला, मेरे वफादार दोस्त, आज तुमने हमारी जान बचा ली। शायद तुमने इल्मे नजूम के जरिए मालूम कर लिया था कि हमारे कमरे की छत गिरने वाली है, इसीलिए तुम गुसल खाने से नंगे ही दौड़ते हुए आ गए। हम तुम्हारी वफादारी और जानिसारी पर बहुत खुश हैं और हुक्म देते हैं कि आज से तुम्हारा दर्जा बढ़ाकर तुम्हें शाही नजूमी बना दिया जाए। नजूमी ने गहरी सांस ली और खामोश हो गया। अगले ही रोज उसकी बीवी एक शानदार घोड़ा गाड़ी में सवार होकर सिंगार खाने में गई। सिंगार खाने की कनीजें और खादमाएं उसके इस्तकबाल के लिए तेजी से आगे बढ़ी, क्योंकि वो शाही नजूमी की बीवी थी और उसे अपनी हैसियत पर बेहद फख्र था। जब उसे मालूम हुआ कि साबिक शाही नजूमी की बीवी इस वक्त सिंगार खाने में मौजूद है, तो उसने रोबदार आवाज में हुक्म दिया, सिंगार खाना फौरन खाली कराया जाए। पहले मेरा सिंगार होगा, इसके बाद किसी और को इजाजत दी जाएगी। हुक्म की देर थी कि कनीजों ने फौरन तमाम औरतों को सिंगार खाने से बाहर निकाल दिया। उन्हीं में साबिक नजूमी की बीवी भी शामिल थी। वो गर्दन झुकाए एक तरफ चल दी, जैसे अपनी किस्मत पर अफसोस कर रही हो। सच है, गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है और खुदा जिसे चाहता है इज्जत देता है।